ہے سندھ حکومت؟ کہاں ہے کراچی کا آئی جی؟ کہاں ہے یہاں کا CCPO؟ فائرنگ اور ہنگامہ آرائی کے بعد علاقے میں رینجرز اور ST کو تعینات کر دیا گیا ہے، جس کے بعد حالات کنٹرول میں ہیں۔ واضح الفاظ میں MQM کہتی ہے کہ بلوچ بھائی ہیں، ان کی لاشیں سارے بلوچوں کی بوریوں میں بند کر کے پھینکی جاتی ہیں۔ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ عمران خان بھائی ہیں اور عمران خان کے آنے پہ پابندی لگتی ہے۔ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ PMLN بھائی ہے اور PMLN کی لاشیں گرتی ہیں۔ واضح الفاظ میں MQM ہمیشہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کی ایک حقیقت ہے، مگر جماعت اسلامی کے لوگوں کو چن چن کے قتل۔ سنیں بات پوری سنیں۔ واضح الفاظ میں MQM کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اتحادی ہے، مگر منور سہر وردی، عبداللہ مراد اور نجیب کی لاشیں گرتی ہیں۔ MQM ہمیشہ واضح الفاظ میں بڑا زبردست موقف رکھتی ہے، مگر اس کے الٹ لوگوں کو قتل MQM کرواتی ہے۔ اور یہ واضح جلیل جیسے لوگ سنیں آخری بات سنیں، آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اشتعال بکھیرتے ہیں اور جن پہ ہیڈ منی ہے، جو غیر قانونی تنظیم ہے، غیر قانونی ہیڈ منی والا شخص تو گورنر ہاؤس میں گورنر بنا بیٹھا ہے۔ ایاز فلیحی صاحب، آپ نے MQM کی بات کی، میں واسع جلیل صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اور اس کا جواب دوں گی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا ہے۔ بھائی سندھ تو قلعہ ہے پیپلز پارٹی کا، وہ کیا اپنا قلعہ توڑیں گے؟ وہ کیوں سپورٹ کریں گے؟ آپ کو کیا ایسی ان کی مجبوری پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے شامل کر لیا کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ جی رحمان ملک کا قلعہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی نا، مگر رحمان ملک اس شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید ہونے کے لیے چھوڑ کے گاڑی لے کے بھاگ گیا۔ تو یہ پیپلز پارٹی اپنے قلعے ایسے سنبھالتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا قلعہ تو لیاری بھی تھی نا، جس پہ گولیاں برس رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا قلعہ تو کندکوٹ بھی تھا نا، جس پہ توڑی بند توڑ کے ان کو ڈبو دیا گیا، سجاول کو ڈبو دیا گیا، سپریو پہ ڈبو دیا گیا۔ پیپلز پارٹی وہ ہاتھی ہے جو ہمیشہ اپنے لشکر کو کچلتا ہے۔ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ جو اس کے ساتھ کام آتا ہے، پیپلز پارٹی اس پہ آپریشن کرواتی ہے۔ جلیل صاحب کی طرف جاؤں گی۔ واسع جلیل صاحب، یہ تو بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں، اور یہ کیوں اتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ MQM اس کے پیچھے ہے؟ کیا کوئی اقدامات میں کمی رہ گئی ہے؟ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے اس کی؟ میرے خیال سے یہ بہت نشے میں رہنے لگے ہیں، اور جتنی انہوں نے مطلب بیٹھ کے جو ابھی لینگویجز آپ کے سامنے یوز کی ہے، میں اگر ون بائی ون بھی اگر اس کا جواب دوں گا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ان کے تمام الزامات پر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر جس دن یہ پروف ہو جائے تو دیکھ لیں 1.1 جواب دیں واسع جلیل، تمہیں جواب ملے گا۔ کراچی کی تنظیم نہیں ہے جس کو تم دباؤ۔ نہ تو غلام ہوں نہ میں آپ کا ہاری ہوں۔ آپ کی بات انہوں نے بڑے آرام سے سنی ہے، پلیز ان کی جواب سے بات کرو۔ میں نہ تمہارا غلام ہوں نہ تمہارا ہاری ہوں۔ کوئی بوری میں بند ہونے والی لاش نہیں ہوں کہ تمہارے مجھے جواب دینا آتا ہے، آؤ میں تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں۔ میری بات سنو، آپ کی بات بہت آرام سے سنی ہے، پلیز میں آپ کے پاس آتی ہوں، میں آپ کے پاس آپ کی طرف آتی ہوں۔ تمہارا غلام نہیں ہوں، تمہارا ہاری نہیں ہو، تمیز سے سنو، تمیز سے سنو۔ تم نہ تو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے سندھ کی، تم جیسے لٹیرے، تم جیسے ڈاکو، تم تمہارے والد سے لے کے تم تک میری بات سنو غور سے، میری بات سنو غور سے۔ سمجھ نہیں آئے گی ایاز فلیحی صاحب، آپ کی بات اتنے اطمینان سے سنی ہے، بات کرنا شروع کیا ہے تم اردو بولنے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایاز فلیحی صاحب میری بات سنیے، میں آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کو پورا ٹائم ملا تھا نا بات کرنے کے لیے، اب آپ ان کی بات تو سنیں نا، پھر پروگرام ہم آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ جی واسع جلیل صاحب آپ کہیے۔ انہوں نے 1 بائی 1 کہا، میں 1 بائی 1 جواب دوں گا، میری بات کو پورا سنیے گا۔ 12 مئی کے اندر یہ لوگ انوالو ہیں کراچی کے اندر، جس شہر میں ہم ترقی کر رہے ہوں گے اس دن ہم اپنی مائیں بہنوں کو اس جلسے کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ ان جیسے اور لوگ اس دن کے اندر موجود تھے۔ جماعت اسلامی کی بات کی، جماعت اسلامی جو ہے وہ یہاں پر لوگوں نے ان کو رول آؤٹ کیا ہے، میں نے ان کو رول آؤٹ نہیں کیا، عوام نے ان کو مسترد کیا ہے۔ عمران خان کو کس نے پابندی لگائی تھی؟ عمران خان کو کسی نے پابندی لگائی؟ ان کا جلسہ اس شہر کے اندر سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تیسری بات آ جائے، انہوں نے ولی بابر کی بات کی، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس دن ولی بابر کا قتل اگر پروف ہو جائے، اپریہینڈ کر لینا آ کے، کراچی میں اردو بولنے والا MQM کا نہیں ہوتا، اس طرح ہر زبان بولنے والے دیگر جماعتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح کی لیم ایکسکیوز کر کے، اس طرح کی جو ہے فاشسٹ زبان استعمال کر کے کبھی بھی اپنے موقف کو، کبھی بھی اپنے مدعے کو اس طرح ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کے چینل سے آج آپ جو ڈیروگیٹری لینگویج یوز کر رہے ہو، کل بھی آپ نے ایک چینل میں بیٹھ کے 27 دسمبر کی بات کی تھی کہ ہم نے 6 دن سندھ کو جو وہ پیرالائز کیا تھا، تو تمام لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اس وقت صورتحال کون خراب کر رہے ہیں، آپ اور آپ کے والد سمیت ایک بھی الیکٹڈ لیڈرشپ آپ کے پاس موجود نہیں ہے
जिसने सिंध के लिए काम किया हो, कभी सिंध को जोड़ने की बात की हो। कायदे तारीख अल्ताफ भाई ने सिंध की प्लूरलिज्म की बात की, कि कल्चरल प्लूरलिज्म की बात करो, कि तुम पूरे सिंध के अंदर जो है लोग जो है वो एक साथ होकर जो यहाँ पर रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर जो है वो साबित कर चुकी है। समाजी सूबा तहरीक के ऊपर सिंध की तकसीम को आप नहीं मानते। मैं दोबारा आपसे ये बात जरूर करूंगी, लेकिन मैं अयाज खलील साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि एक बात, सराइकी सूबे का नारा लगता है, कोई ये नहीं कहता कि खून की नदियां बह जाएंगी और ये होगा वो होगा। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भी सूबा बनता है, बहावलपुर और हजारा की मैं बात करूं उसका भी नारा लगा। लेकिन जब ये सिंध की तकसीम की बात होती है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि वो दरियाए सिंध जो है वो खून से हम उस जैसा रंग हो जाएगा? क्यों? अगर पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सूबे बनने की बात होती है तो हलाल, और अगर सिंध में बात होती है तो हराम, क्यों? जी अयाज खलील साहब, अब पारस मुझे मौका दीजिएगा जी बिल्कुल से बात जी बिल्कुल। बड़ी सही बात की आपने। पाकिस्तान के दूसरे सूबों में सूबे बनने, अब मुझे बोलने दीजिएगा। तो सराइकी हजारों सालों से एक कौम है। अगर सिंध में हजारों सालों से कोई कौम बसती है तो भले बना ले सूबा अपना। अगर बलूचिस्तान में या पख्तूनख्वा में हजारों सालों से, कल मैं आपके गांव चला जाऊं मर्दान, और मर्दान में कहूं कि मुझे 20 साल हो गए सूबा बना लूं, या मेरे परदादा हाजी थे इसलिए मुझे हाजी कहो, हाजी परदादा हो सकता है, मैं हाजी नहीं हूं। मुहाजिर जो भाई थे उनके वालिदैन हिजरत करके आए, हमें उनके लिए इज्जत है। ये तो खुद पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि हमारे भाई वासे जलील साहब ने वो जुबान जो इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है किस किस्म की उनकी आदत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं जीतते। हम इलेक्शन जीते हैं, आ रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे तो है ना, लंदन तो नहीं भाग गए, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर इलेक्शन जीतने के बाद लंदन भागने की जरूरत पेश आ जाए और पाकिस्तान वापस ना आए, ऐसी क्या तकलीफ है कि आप हैं इलेक्शन जीतते यहां से हैं और भाग लंदन जाते हैं, और जब भी हुकूमत बदलती है क़यादत पूरी लंदन भाग जाती है। एक बात। दूसरी बात कि आखिर क्या मजबूरी है कि हर 3 माह बाद हुकूमत छोड़ने की धमकी होती है, 5-10 करोड़ रुपए अरब रुपए लेके हुकूमत में वापस आ जाते हैं, हर 3 माह के बाद ब्लैकमेलिंग होती है। अगर रही बात एहसास महरूमी की, तो पाकिस्तान की कौन सी ऐसी चीज है जिसमें उर्दू बोलने वाले भाइयों का हिस्सा नहीं है? सिंध हाईकोर्ट में 10 जज इनके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग इनका, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ इनका, नेवल हेड इनके, मोइनुद्दीन हैदर इनका, स्टील मिन और केपीटी और पोर्ट कासिम इनके पास, रेलवे इनके पास, बड़े सफारत खाने इनके पास, तमाम इख्तियारात इनके पास, फिर भी एहसास महरूमी है। और हम जो भूखों मर रहे हैं, जो कंदकोट में जिनकी जमीनें डूब गई, जिनको 5-5 हजार वतन कार्ड के नाम पर जिनके लिए दरबदर किया गया, वो बड़े एहतराम के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये एहसास महरूमी है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि सूबे बनने के पस मंजर में ये कुछ भी कहें, इनके कहने से क्या होता है? ये सुने मेरी बात सुने, पस मंजर में ये बैठे हुए हैं, अब इनकी बात नहीं आप गौर कर रही क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हुकूक फला। रही बात ये कि कराची में सिंध के तालिब इल्मों को पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मल्टीनेशनल कारपोरेशन में काम करने की सिंध के लोगों को इजाजत? क्यों लियारी बैकवर्ड है, शांतिनगर और बेटायाबाद और गुलशन इनका सुने हर उर्दू स्पीकिंग नहीं बोलने वाला बोल रहा। आज सिंध के हजारों उर्दू स्पीकिंग ने मुझे फोन किए हैं कि एमक्यूएम हमें मरवाना चाहती है। वो कहते सुने जी, उंगलियों पे गिनने जाने वाले लोग इनकी हिमायत इकबाल हैदर कर रहा है। उर्दू स्पीकिंग नहीं है इकबाल हैदर, अनीस हारून ने उर्दू स्पीकिंग नहीं है, शीमा किरमानी उर्दू स्पीकिंग नहीं है, ये ताज हैदर उर्दू स्पीकिंग नहीं है, शैला रजा उर्दू स्पीकिंग नहीं है। आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनके पीछे ये लोग सारा टाइम मैं गेस्ट को नहीं दे सकती। वासे जलील साहब, आप जवाब देंगे? आप जो बातें अलीजो साहब ने की हैं आपके हवाले से? जी बिल्कुल दूंगा। अब मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की व्यूअरशिप आपके चैनल के तवज्जुह से देख रही है, तो वो खुद अंदाजा कर लें कि कौन जो है वो लॉजिक की बात कर रहा है या सेंस की बात कर रहा है। कोई क्रेडिबल बात नहीं है। अवल तो मैंने कोई मुतालबा किया नहीं जो बार बार मुझ पे आके बात कर रहे हैं, फला चीज से क्लेम कर रहे हैं। मैंने तो नहीं ये जो चेकलिस्ट उन्होंने पूरी बताई है। आप एक बात देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो देखिए आप लोग ये कहते हैं, एक मिनट अयाज खलील साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं? आप किसी एक पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मुझे बात तो करने दीजिए ना। वासे जलील साहब, आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप लोग मेरे ख्याल से मैं जितनी पेशेंस के साथ बात सुन रहा हूँ, जैसी वासे जलील साहब शुरू करते हैं, आप फिर बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। उनकी बात तो सुनिए ना अयाज खलील साहब। वासे जलील साहब, आप बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि आप सिंध की तकसीम की बात नहीं करते, लेकिन वासे जलील साहब ये बात भी तो क्लियर नहीं है ना कि जो महाजिर सूबे का नारा लगा रहे हैं, आपने ना उनकी मुखालफत में कोई बात की है, ना आप उनके फेवर में कोई बात करें। ये लोग आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, महाजिरों को बदनाम कर रहे हैं। आप महाजिरों के नुमाइंदे हैं, आप तकसीम की बात नहीं करते, ये तकसीम की बात कर रहे हैं महाजिर सूबे वाले। आपको नहीं लगता इससे महाजिर डिवाइड होगा?
देखिए, इनका तो क्रैक सेंस है ना, कोई लॉजिकल गुफ्तगू नहीं कर रहा है, बीच बीच में इंटरवीन करके। इनकी इतनी पेशेंस तो है नहीं कि किसी की बात को गौर से सुन ले, तो खुद अंदाजा कर लेना कि कितने चैंपियन है। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूँ, सिंपल सी बात कह रहा हूँ, इनके वालिद साहब से लेके और इन तक मुझे कोई एक क्रेडिबल चीज बता दे कि कोई अभी तक, जब से मैं कल से सुन रहा हूँ, 3 दिन से सुन रहा हूँ, कोई एक लॉजिकल बात की उन्होंने आके टीवी के ऊपर के मैं कोई अच्छी बात कर रहा हूँ जिससे मैं इंटरेस्ट हूँ। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अब मेरी बात सुन ले पारिस, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जितनी बातें की हैं, मैं तो उसको सख्ती से रद्द करता हूँ। कोई हमारा एजेंडा नहीं है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल उर्दू बोलने वाले हैं, उनकी ग्रेवेंसेज हैं, और जिन ग्रेवेंसेज की चेक लिस्ट में ये बता रहे हैं, अगर कोई वो हायर अप में आके बैठ गया, एक इज्तिमाई तौर पर होती है, एक इनफरादी तौर पर होती है। अगर किसी हायर अप पे आके कोई बैठ गया है तो वो मिनहसुल कौम की बात नहीं हो रही। जो लोग ये जो हमने आज टीवी पे या 3 दिन से हम सुन रहे हैं, सब लोग आगे जो अपनी अपनी जो दलील दे रहे हैं या जो उनकी ग्रेवेंसेज हम सुन रहे हैं, वो एक अलग इशू है। देखें, एड्रेस करना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कह रही है कि पाकिस्तान में बसने वाले जो लोग हैं उनकी बातों को सुना जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जरूर बात की है, मगर हमने इस महाजिर सूबे के हवाले से ना तो हमारा कोई मुतालबा है ना कोई मौक़िफ है। हमने कहा है कि हाँ, जो लोग गुज़िश्ता चंद दिनों से यहाँ पर, महीनों से यहाँ पर हमने देखा कि महाजिर सूबे तहरीक की बात कर रहे हैं, उनकी बात करें। एमक्यूएम ने जरूर जो जनूबी पंजाब है या दीगर जगहों पर जो है वो पॉपुलर डिमांड को कैरी किया है, और उनके लिए ये कहा कि इनकी बातों को सुने, इनकी परेशानियों को। आप बिल्कुल सही बात करें, लेकिन देखें, इल्जाम तो आप लोगों पे ही आ रहे हैं ना कि आप इनके पीछे हैं, तो फिर आप लोगों को खड़ा होना चाहिए ना, कोई बयान, बिल्कुल क्लियर बयान दे देना कि आप इनके फेवर में हैं या नहीं है। मैं फिर वही बात करूंगी, आपको नहीं लगता कि इससे फिर महाजिर डिवाइड होगा, आपका अपना जो वोट बैंक है वो डिवाइड होगा? और वासिफ जलील साहब, क्या गारंटी है कि कल को यही ग्रुप आपके सामने उठ के खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल माजी में भी याद होगा, आप ही का ग्रुप था हकीकी, वो आपसे अलग हो गया, आप लोगों के इख्तिलाफात थे। ये जो महाजिर सूबे वाले हैं, ये भी आप ही के वोट बैंक है ना, इनका ताल्लुक उन्हीं इलाकों से है ना, कल को ये भी खड़े हो सकते हैं आपके आगे, फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं 2 बातों की आपने बड़ी एक हिस्टोरिकल बात की, उसकी तस्हीह करना बहुत जरूरी, ताकि हिस्टोरिकली, क्योंकि जो बच्चे कल छोटे थे आज वो सुन रहे होंगे, हकीकी वो एमक्यूएम का कभी पार्ट नहीं थी। वो उस दौर की स्टैब्लिशमेंट का क्रिएट करदा एक पार्ट था, जो एक्सपेल शुदा थे, जो क्रिमिनल्स थे उनको बाहर निकाला था, वो उनका बनाया हुआ हकीकी नाम है। वो एमक्यूएम है नहीं, एमक्यूएम कल भी एक थी और आज भी एक ही है। दूसरी बात यह कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इस हवाले से दे चुकी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध को एक देखना चाहती है। सिंध को कभी जो है वो उसका जो है वो 2 हिस्सों में नहीं देखना चाहती। सिंध एक यूनिफाइड सिंध चाहती है, और यकीनन हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर जो है वो हार्मनी जो है वो क्रिएट हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। मैं एक बात का और जरूर जवाब देना चाहूंगा, जो कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियोरिटी है, मुझसे सवाल करने के बजाय ये मेरे एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है शहर के अंदर के तालीमी इदारों में नहीं मिल रहा, फला नहीं मिल रहा, अपने उन 23 इजला में जाके बात करें कि जिन्होंने सिंध को बैठ के, अपने इजला को बैठ के खाया है, जिसको लूटा है, लैंड ग्रैबिंग की है, उन जगहों पे जाके उन लोगों ने जो भी रूलर्स हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उनसे जाके बात करें जिन्होंने तालीमी इदारे क्यों नहीं क्रिएट किए, ताकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। कराची के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी मेहनत से इंस्टीट्यूशंस को बनाया है, उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनका पढ़ना हक है। कराची में उर्दू बोलने वाले भी रहते हैं, कराची में सिंधी भी हैं, पंजाबी भी है, पठान भी है, सब तालीम इदारों में जा रहे हैं। ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। आपकी तरफ में आऊंगी। आप एक बात तो मुझे ये बताइएगा कि आपने कल मोहब्बत सिंध रैली निकाली, यानी कि सिंध की तकसीम के खिलाफ। अब आपने एमकेएम का मौकफ अभी सुना, वासिफ जलील साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं आपको दूंगी कि वासिफ जलील साहब ने भी कहा एमकेएम का बड़ा क्लियर मौकफ है कि हम भी सिंध की तकसीम के खिलाफ नहीं है। दोनों का मौकफ तो एक जैसा आ रहा है। आपने क्या एमकेएम को दावत दी थी कि आओ इस रैली में हमारे साथ शिरकत करो, और इस रैली के निकालने के लिए आपने कराची का इंतखाब ही क्यों किया, कराची में ही क्यों निकाली? जी हयास फलीजो साहब, जबरदस्त बात की है, कितनी अच्छी अच्छी बातें पूछ रही है पारस जी कि तकसीम कराची की करने की कोशिश की जा रही है, रैली हमें टंडोबागो या जुडो में निकालनी चाहिए थी। बड़ी जबरदस्त बात की ना, कराची में क्यों रैली निकाली? हमको जाके चीचों की मलिया में मकान में रैली निकालनी चाहिए थी। कराची सूबे की डिमांड करें, कराची हमारा नहीं है, इनका है, इसलिए हमें यहाँ रैली नहीं निकालनी चाहिए थी। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने ना, तसल्ली से मेरी बात सुने, तसल्ली से मेरी बात सुने। अब देखें एमक्यूएम को क्या तुक पड़ी थी कि जाके उन्होंने हजारा सूबे और साउथ पंजाब की बात की। एमक्यूएम साउथ पंजाब और हजारा में है क्या? मकसद ये था, मैं पारस साहब को बताना चाह रहा हूँ, गौर कीजिएगा। आलमी ताकतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं। अच्छा, उसके लिए उनके पास कौन सी ऐसी पार्टी है जिनका लीडर उनके पास कैद में है? फकत एक पार्टी है जिनका लीडर उनके पास महबूस है, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। वो चाह रही हैं पाकिस्तान को तोड़वाने के लिए
पूरे पाकिस्तान में अनारकी फैले, पूरे पाकिस्तान में फैला चुके हैं, फकत सिंध बचा हुआ है, सिंध के भी 23 अजलाओं में नहीं है, फकत कराची में। साहब मेरे प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, भैया जाम सुने मेरी बात, मैंने आपसे वो टाइम मेरे आके टाइम खत्म हो जाता है ना, मेरा टाइम खत्म हो जाता है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो प्यारे चैनल वाले हैं एमकेएम के सामने टाइम खत्म हो जाता है। मैं उनसे भी वही बात कर रही हूँ, टाइम भी खत्म हो, आप कहिए, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपने एमकेएम को दावत दी थी कि नहीं, क्या पता हमें ना पता हो, तो वो बता दीजिए ना। हाँ, पारस एमक्यूएम जो हमें कत्ल कर रही है, उसको हमें दावत देनी चाहिए, ये भी आपका दिलचस्प सवाल है। तो साउथ पंजाब और हजारा के बाद कराची उनका टारगेट था। एमक्यूएम पाकिस्तान को तोड़वा के टुकड़े टुकड़े करने की चार्ज ले चुकी है। आप जाके आज की उम्मत अखबार पढ़ें, उसमें रिपोर्ट है, मलेशिया से इन्होंने टेररिस्ट मंगवाए थे रनचोड़ लाइन के, जिन्होंने आके कत्ल किए हैं। ये लोग 12 मई को लोग कत्ल करते हैं। जो हम बातें कर रहे हैं, आपसे जो बातें हम कर रहे हैं, इसके लिए 2 घंटे का प्रोग्राम है। कहते हैं हम मोहब्बे वतन हैं, हम पाकिस्तान दोस्त हैं। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, मुझे ये बताइए अब फाइनली होगा क्या? टाइम खत्म हो रहा है ना, प्रोग्राम कट जाएगा, आपकी बात आधी रह जाएगी, मुख्तसर बता दें अब फाइनली होगा क्या? ये बता रहा हूँ। हाँ, जल्दी बता दें। फाइनली ये होगा कि इन कत्लों का हिसाब लिया जाएगा इन दहशतगर्दों से, सिंध को पुरअमन रखा जाएगा, कातलों को चुन चुन के गलियों में घसीटा जाएगा। उर्दू बोलने वाले भाई हमारे भाई हैं, उन भाइयों को साथ रखा जाएगा। सिंधी और उर्दू बोलने वाले एक साथ हैं, उनकी मोहब्बतों की दास्तानें रकम होंगी तारीख में आगे चल के। सिंध एक रहेगा, पाकिस्तान में सिंध का कलीदी किरदार बरकरार रहेगा। एमक्यूएम के दहशतगर्दों को भागने की जगह नहीं। बहुत शुक्रिया वासिफ जलील साहब, आप भी मुख्तसर से कमेंट कीजिएगा। अब आगे क्या होगा? बड़े स्टेक होल्डर हैं आप, कराची के अमन अमान की जिम्मेदारी ज्यादा आपकी बनती है, आपका कंट्रोल है, आप हुकूमत में भी हैं। जी देखिए फारिस क्या कहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल करने की सलाहियत भी रखते हैं, मगर इन जैसे लोगों को मैं अपना बियॉन्ड डिग्निटी समझता हूं कि बैठ के जो ये फाशिस्ट गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं इनकी किसी बात का जवाब दूं, कोई नहीं है। हमारे पास एजेंडा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है वो शो की हुई है। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यू और एमक्यूएम की लीडरशिप में जो है वो इतना विजन मौजूद है, इतना सब्र तहम्मुल मौजूद है कि अपने मुल्क को, अपने सूबों को जो है वो किस तरह प्रॉस्पेरिटी देनी चाहिए, उसको लूटने का मेरे पास कोई प्लान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिफ जलील साहब, एमक्यूएम से ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है। वो तहरीक सदर हैं अयाज पलीजो साहब, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह ने के बाद।